Very good morning, dear student. So today I am going to teach you chapter number 7, experiments with water. Okay, let's start. Page number 60. What floats, what sinks? क्या तैरता है और क्या डूब जाता है? Aisha was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. So, here Aisha and mother. Aisha was waiting for the dinner, and today Ammi means Aisha की मम्मा. She was making a favorite food. Aisha का favorite food कौन सा था? Puri and spicy potatoes. Okay. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. So you are also doing the same things, no? When your mama she used to cook in the kitchen, you also stand there, no, to see the recipe, no? So same things she is doing. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. उसकी मम्मा है, आयशा की मम्मा क्या कर रही थी? पूरी बना के hot oil के अंदर डाल रही थी. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. उसने क्या देखा आयशा ने? जो पहली पूरी थी वो ऑयल के अंदर डूब गई. As it puffed up, मतलब कि फूल गई. The puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. Then what happened after? Aisha ने क्या किया? One puri did not puff up and did not float like the other. So on seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. आयशा ने क्या किया? जो गूंदा हुआ आटा था वो लिया और उसको रोल बॉल जैसा बनाया. She flattened it and put it in a bowl of water. उसके बाद आयशा ने एक पानी के बाउल है उसके अंदर रखा. Alas, it sank to the bottom and stayed there. Okay, so उसके बाद क्या हुआ बच्चों? जो उसने लिया था वो पानी के अंदर डूब गया. Okay, okay. Think what would happen if Aisha put a puffed puri in a bowl of water. Would it sink or float? Yes. Steel plate will float and spoon will sink. ये सब आपको पता है. Okay. You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? Would the cap of a plastic bottle sink or float on water? So, for an example, cap of plastic bottle will float. In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Aisha क्या कर रही थी? She was having the bath. वो नहाने के लिए गई थी. Then उसने क्या किया? She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. पानी के अंदर soap उसने डाल दिया था. Take it out and put it in the soap case. क्या क्या उसकी मम्मा ने क्या बोला कि साबुन निकाल के उसकी जो सॉप केस है मतलब कि स्टैंड है उसके अंदर रखो. Aisha was in hurry and the soap case fell out of her hands. बहुत उतावली थी तो वो पानी के अंदर ही पूरा चला गया. Okay, you can see in a second picture. Okay, here you can see her hand it started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float it. आयशा ने क्या देखा? पानी और
पानी के अंदर क्या था, साबुन और उसका सॉफ्ट केस, वो दोनों तैर रहे थे। इवन विद द सॉफ्ट इन इट, वो सॉफ्ट था फिर भी हो रहा था ऐसा। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक? क्या आपने कभी ऐसा देखा है बच्चों कि पानी के साथ ये सब दोनों चीज़ तैरती हुई आपने कभी देखी है? यस, थिंक हाउ दिस हैपन्स। द पोम हियर raises such a questions. Okay, so why this all things happen? Because this happens because of buoyancy force. Just think that I throw one ball in the water. तो वो बॉल कहाँ आके गिरेगा? बॉल ऊपर से नीचे की तरह आएगी। ओके, क्या होगा अगर मैं बॉल को पानी के अंदर डालूं, तब भी बॉल नीचे की तरह जाना चाहता रहेगा। लेकिन पानी के अंदर भी एक अपना फोर्स होता है, पानी की भी अंदर एक फोर्स होता है। ओके, जो पानी में गिरने वाली हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि हर एक चीज़ को ऊपर की तरफ धक्का देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोंसी फोर्स। ओके, सो बायोंसी फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid to oppose the weight of an immersed object. So वो फोर्स, बायोंसी फोर्स वो होता है बच्चों कि पानी में गिरने वाली किसी भी सामान की ऊपर की तरफ धक्का देती है और उसे कहते हैं हम बायोंसी फोर्स। हाउ डू वी नो व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोटेड और सिंक? हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डूब गया है या फिर तैर रहा है? जब भी कोई चीज़ पानी में गिरती है तो पानी में उसकी जगह पानी क्या करता है? उसकी जगह देनी पड़ती है उसको। ओके, उस ऑब्जेक्ट जितना पानी है उस जगह से हट के साइड में आ जाता है और इस हटे हुए पानी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेस वाटर। जो भी पानी हट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेस वाटर। ओके, लेट्स सी वाई ओ वाई। अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट बट अ नीडल विल सिंक। वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक। ओके, सो क्या बोलते हैं इधर? जो वुडन का पूरा बोट है वो पानी के अंदर फ्लोट हो रहा है। ओके, मतलब कि तैर रहा है, बट एक छोटी सी निडल, सुई है, वो डूब जाती है। क्यों ऐसा होता है? एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट थ्रू इट्स मच हैवियर देन माई बोल। सो बट अ निडल लाइट एज अ लिप, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. Do this and find out. Do this experiment in group of 4 friends. आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। Each group will need a big pot filled with water and the thing listed in the table. Okay. Put each thing one by one in water and observe. Write your observation in the table given on the next page. Okay, so what you have to do? Here you have to do one experiment in group of your 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the thing listed in the table. Make a right for the things that float. Mark क्रॉस फॉर दोज दैट सिंक्स। जो डूबी हुई चीज़ है उसके ऊपर क्या करना है? क्रॉस। और जो फ्लोटेड मतलब कि तैरती है वो चीज़ पे आपको क्या करना है? यस, ओके, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू डू वन एक्सपेरिमेंट, देन यू हैव टू डू राइट और रॉन्ग बाय योर सेल्फ। ओके, सो व्हेन weight of an object is more than the buoyancy force, the object will sink. And when buoyancy force is more than the weight of an object, the object will float. It is magic. When Aisha woke up in the morning,
अम्मी हैड फीवर। आयशा जब मॉर्निंग में उठी तो उसकी मम्मा को क्या था? फीवर। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी। अब्बा ने क्या किया? उसके अप्पा ने उसकी मम्मा के पास जाके टी और मेडिसिन दी। ही टोल्ड आयशा यू बॉयल एग्स। आयशा को क्या बोला? तुम बॉयल एग करो। ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर, और थोड़ा नमक डालना। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर। सो बाय मिस्टेक नो, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, थोड़ा ही बोला था पर उसने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया। She saw that eggs at the bottom of the pot came up a little and started to float in the water. उसने क्या किया? देखा कि सब जो नमक है वो बहुत ज़्यादा अंदर हो गया है। It the eggs at the bottom of the pot and come up a little and start the float in the water. और जो अंडे है वो क्या हुए? तैरने लगे। Now take some water in a glass. You have to do टेक सम वाटर इन अ ग्लास। आपको क्या करना है बच्चों? पानी लेना है ग्लास के अंदर। पुट अ लेमन, और उसके अंदर लेमन डालना है। नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, और पानी और सॉल्ट और उसको अच्छे से हिलाना है। हाफ अ स्पून एट अ टाइम। व्हेन यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन अ वाटर, और आप पानी को तैरते हुए देखोगे। व्हाट डू यू थिंक? द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर बिकॉज व्हाट हैपन? क्यों ऐसा होता है? Because the water became thicker and thus the lemon started floating. Okay, that's sea. All ocean and sea have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such a salty water? It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. अच्छा, सो ये डेड सी है, वो कहाँ पे है? सो इट इज़ बिटवीन द जॉर्डन एंड इज़राइल, देयर इज़ अ डेड सी। और ये सी ऐसा है, अगर आपको तैरने का भी नहीं आता है फिर भी हम डूब नहीं जाते, पानी के ऊपर ऐसे रहते। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, व्हाट डिसॉल्व, व्हाट डिड नॉट? पानी में क्या धुलता है और क्या नहीं धुलता? ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा, a sweet dish. आयशा के घर उसके कजिन भाई आए थे और उन्होंने उसकी मतलब कि मासी को बोला कि आप मेरे लिए क्या बना दो? शक्करपारा, जो मेरी फेवरेट है। Ammi said, let me come back from the market. Then I will make some for you. Why don't you help me? अम्मी उसकी क्या बोलती है? आयशा की मम्मा, कि तुम मुझे थोड़ी मदद कर दो, मुझे मार्केट जाना है। Then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glass of water and put a bowl of sugar in it. क्या बोला उसको? कि 2 पानी के गिलास लो और उसके अंदर शुगर डालो। मिक्स इट टिल इट डिसॉल्व, और क्या बोला कि तब तक उसको स्टर करो जब तक वो मिक्स ना हो जाए। हमीद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी, और हमीद ने ऐसा बोला क्यों मैं फटाफट काम कर लूँ और टीवी देखने के लिए बैठ जाओ। नो, यू ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स. सो व्हाट इज सजेस्ट सम वेज टू हमीद फॉर क्विकली डिसॉल्विंग शुगर. हमीद को क्या करना है, हमें एक सजेशन देना है. सो कैसे हम लोग शुगर को जल्दी मिक्स करते हैं वाटर के अंदर. ओके, सो फर्स्ट थिंग स्टरिंग इट फास्ट, और यू कैन सी हीटिंग अप द लिक्विड. उसको क्या करना है, मिक्सर के अंदर अच्छे से उसका एकदम
लिक्विड फॉर्म, या फिर उसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। ओके, डू दिस एक्सपेरिमेंट, मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, 4 फ्रेंड्स। अगर आपके पास 4 फ्रेंड नहीं है तो क्या करना है, 4 बाउल लेना है या फिर 4 ग्लास लेना है। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4-5 ग्लासेस। ओके, 4-5 ग्लासेस आपको रखना है, और अ बाउल, स्पून, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। ओके, टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, सभी ग्लास के अंदर पानी डालना है। नाउ ट्राई टू डिसॉल्व वन थिंग इन वन ग्लास, observe that what happens and note in the table. Okay, so things, did it dissolve or not, what happened after keeping for 2 minutes. So for example, if we took salt, तो salt क्या होता है, पानी के अंदर जल्दी हो जाता है, तो yes, salt mixed completely. Okay, soil मतलब कि मिट्टी, no, soil did it dissolve or not, no, जल्दी नहीं हो जाता है। सॉइल सेटल डाउन, वाटर बिकेम मडी, और क्या हो जाता है, जो सॉइल होता है वो पानी के नीचे जाता है और पानी कैसा हो जाता है, एकदम मडी। चॉक पाउडर, देन यू हैव टू राइट नो। चॉक पाउडर सेटल डाउन, चॉक पाउडर क्या हो जाता है बच्चों, नीचे चला जाता है। ओके, 1 स्पून मिल्क, यस, वो क्या हो जाता है, एकदम मिक्स हो जाता है। वाटर बिकेम अ वाइटिश, और पानी कैसा हो जाता है, वाइटिश। Mix in water and water became the whitish. Then after oil, did it dissolve or not, no, पानी के ऊपर तेल क्या हो जाता है, floated हो जाता है। So oil floated on the surface of the water. While doing the experiment, Aisha and Hamid had an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water. Aisha said, let's wait for the some time and then see. Okay, racing drops. Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She titled, she saw some drops slid down quickly while some were left behind. Okay, where did the water go? One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. ये सब हमारे साथ भी होता है ना, कभी कभी पानी गैस के ऊपर रख के भी आप छोड़ के चले जाते हो। when you remember कि मैंने कुछ रखा है गैस के ऊपर, you fast came and stop the gas. So think, where did the water go? आप सोच सकते हो पानी कहाँ पे गया होगा। The water evaporated and turned into the vapor. The water changes from liquid to gas form. Okay. Why did Chitu Bhai and Chinu Bhai keep their mango jelly in the sun? आपको सबको पता है क्यों, क्योंकि वो ड्राई हो जाए, और उसके अंदर से क्या बनाया था इन दोनों ने, मामी भी तांद्रा। Okay, Dandi March. Who has started this? Gandhi ji has started. This incident took place in 1930, before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make a salt themselves. So Britishers थे, उन्होंने क्या रूल्स रखा था कि कोई भारत के लोग कोई क्या कर नहीं सकते, सॉल्ट बना सकते नहीं है, और उस टाइम में सॉल्ट बहुत महंगा था। So they had also put a heavy tax on salt. मैंने बोला ना कि क्या किया, हैवी टैक्स रखा था नमक के ऊपर। By this law, people could not make a salt even for use at home also. और उस टाइम में they cannot buy the salt because it was very costly. How can anybody live without salt? क्या आप हम सब नमक के बिना
रह सकते हैं, खाने के अंदर नहीं डाल सकते तो कैसा लगता है टेस्ट। गांधी जी सेड हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ द फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन। नो, नेचर ने हमें दिया है वो हम क्यों नहीं उसको फ्रीली ले सकते। सो गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, और गांधी जी भी साथ में थे और दूसरे लोग भी अच्छे अच्छे लोग थे वो भी उसके साथ में थे। वेंट ऑन अ यात्रा, उन लोगों ने यात्रा निकाली। लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद, कहाँ से, अहमदाबाद टू डांडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। डू यू नो how salt is made? The sea water is collected in a shallow beds dug in the sand and water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. So इंडिया वाले ने नमक में नहीं, नमक को बना नहीं सकते, वो कौन कहते थे, ब्रिटिशर्स, और वो उसको खरीदने के लिए उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था। सो गांधी जी ने अपने नेतृत्व में क्या किया, दांडी यात्रा की शुरुआत की। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।